Good morning, everyone. I am your maths teacher, and this is chapter number 5 of Maths Factors and Multiples. Now, let's just continue with this chapter, and I'll explain what are factors and multiples. The objectives which we learned from this chapter is to learn about the concept of multiples and factors, to learn how to find out LCM and HCF, to learn the divisibility rules. What is factor? A factor of a number is any amount that divides into the number exactly, leaving no remainder. Example, if we see there is 2. 2 is a factor of 12 because 2 goes into 12 6 times. That means 6 multiplied 2 is equal to 12. So, we can say that a factor means that number divisible the number which is given exactly and leaves the remainder 0. So, if we check what are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Yes, these are the factors because all these numbers divide 12 in them and leaves the remainder as 0. Now, please, there is a tip for you. Learn the tables thoroughly so that you can learn all the factors of different numbers. What is multiples? A multiple of a number is the result of multiplying that number by a whole number. Class, that means a multiple means the tables. The answers which we get in the tables are the multiple of that number. Like you can see some multiples of 2, 2, 10, 8, 20, 4. Multiples of 3, 3, 15, 30, 60, 9. These all things comes in the tables of respective number. So please, it's a tip for you. Learn the tables properly. Now, what are prime numbers and composite numbers? A number which is divided by 1 and the number itself are the prime numbers. Composite numbers, more than one prime number can be divided by other factor as well as 1 and itself. It means that एक से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होंगे, वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होगा. जैसे कि उस नंबर का 1 भी फैक्टर हो सकता है, खुद वो नंबर अपना फैक्टर भी हो सकता है, उसके अलावा उसके कितने भी फैक्टर्स हों, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. मतलब कि उसके 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर है, और अगर वो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं जैसे कि 1 और वो नंबर खुद, तो वो क्या हुआ? प्राइम नंबर. Note, the number 1 is considered neither prime nor composite. जो number 1 होता है, 1 ना ही प्राइम में आता है ना ही composite में, क्योंकि 1 सबका फैक्टर भी होता है और सबका मल्टीपल भी होता है. Now, in this table, it is given the different prime numbers to you. The circle ones are the prime numbers and the rest which are cut out, that are composite numbers. So, please note it down somewhere and learn all these prime numbers. And from 1 to 100, there are 25 prime numbers. And 1 is a unique number which doesn't come as a prime number and nor as a composite number. Divisibility rules. First, 2. A number is divisible by 2 if the last digit is even, like 0, 2, 4, 6, 8. If the last digit is even, then the number is divisible by 2. Now, divisibility by 3. For example, if we see this digit 738, we have to add up all the digits to get the answer, and that answer, if that answer is divisible by 3, then the original number is divisible by 3. If you can see 738, we add up, we get it as 18. Now this 18 is divisible by 3, so then this 18 is divisible by 3, that means 3 will be divisible by 738, that is 738. So class, that means the sum of all the digits, if that sum is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. Divisibility of 4.
A number is divisible by 4 if the last 2 digit is divisible by 4. अगर आखिरी 2 डिजिट डिविजिबल होती हैं 4 से या फिर आखिरी 2 डिजिट्स में 0 0 होता है तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है 4 से. Divisibility of 5. That means the last digit जो वंस प्लेस होती है वो अगर 0 है या 5 है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता है 5 से. लाइक 5 पहला एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड 180. सो लास्ट डिजिट इज 0. दैट मीन्स दिस नंबर 180 विल बी डिविजिबल बाय 5. नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 6. 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इफ़ द काउंटिंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6. ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है वो 2 से भी डिवाइड होता है एंड एज वेल एज 3 से, देन इट इज़ definitely will divide by 6. Like 252. Now if you see 252, अगर हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखनी है इस नंबर की तो हमें पता लग रहा है वंस प्लेस पे 2 है, दैट मीन्स इट इज़ इन इवन, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2. मतलब ये 252 तो डिविजिबल होगा ही होगा 2 से. अब देखते हैं 3 से होता है क्या. 252 की डिविजिबिलिटी हमने ये पढ़ी थी 3 की कि अगर हम सारे डिजिट्स का सम कर दें जो टोटल आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 से. तो अगर हम 252 को ऐड करें आंसर आता है 9. सो 9 इज़ डिविजिबल बाय 3. सो नाउ 2 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, सो डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. डिविजिबिलिटी ऑफ 8. इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स, क्लास इसमें क्या करना होता है, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होती हैं, 8 की टेबल में आती हैं और रिमाइंडर 0 छोड़ती हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होता ही होता है. या फिर लास्ट की तीनों डिजिट्स में 0 0 0 हो तो भी वो नंबर 8 से डिवाइड होता ही होता है. जस्ट लाइक 4, हम 4 के अंदर लास्ट की 2 डिजिट्स को देखते हैं, 8 के अंदर हम लास्ट की 3 डिजिट्स को देखते हैं. अगर वो तीनों डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही हैं कंबाइंड होकर और अगर वो तीनों डिजिट्स में 0 0 0 लिखा हुआ है तो भी वो 8 से जाएंगी ही जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल 6328, अगर आप देखें 6328 में मैंने बोला लास्ट 3 डिजिट्स 328, अगर आप 328 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 41. दैट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा ही होगा. नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 9. क्लास 9 की डिविजिबिलिटी कैसे पता लगती है? वी हैव टू सम अप ऑल द नंबर्स. हमें सारा सम अप करना पड़ता है जैसे हम 3 के अंदर करते हैं, मगर 9 में थोड़ा सा ट्विस्ट है. 9 में हम ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करते हैं. जैसे कि नंबर दिया हुआ है 963. अब 963 में आई मीन दैट ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करिए. दैट मीन्स आप सारे नंबर्स को जब आप ऐड कर लेंगे तो टोटल आएगा 18. अब आप इनका 18 को देखेंगे कि वो 9 से जाता है. अगर वो 9 से जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स ये 963 का आंसर 18 आया था तो 18 तो 9 से डिवाइड होता ही होता है, तो फिर ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा ही होगा. नाउ 5445, दैट मीन्स 5445 को जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 18 एंड 18 9 की टेबल में जाता है. दैट मीन्स दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9. नाउ लेट्स कम टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 10. A number is divisible by 10 if in the end last digit अगर उसकी 0 है. अगर उसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0. जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 30 को मैं देखती हूँ, 30 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ आंसर आएगा 3. 30 के अंदर जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, दैट मीन्स ये 10 से डिवाइड होगा ही होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 340. अगर मैं 340 को देखूँ लास्ट डिजिट 0 है, दैट मीन्स ये 10 से डिवाइड होगा ही होगा और रिमाइंडर छोड़ेगा 34. अब मैं देखूँ 67, क्या लास्ट डिजिट 0 है? नहीं, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 10 से. नाउ एक और एग्जाम्पल 784, लास्ट डिजिट 0 है, वंस प्लेस 0 है क्या? नहीं, so that means it will not be divided. So thank you all for listening to this PPT and I hope you have cleared your doubts, so please listen to it carefully. Thank you all.